In the last class, we discussed about function and types of function, like identity function, constant function, and polynomial function. Today, we will discuss about some more function like rational function, modulus function, signal function, greatest integer function, smallest integer function, and fractional part function. So let's talk about rational function first. You heard about rational number in earlier classes. Yes, a number which is in the form of P upon Q, where P and Q belongs to integer and Q does not equal to 0. This is a rational number. Okay, and we are talking about rational function. So we can relate with this definition, which is rational number, and this is a rational function. So a function which is in the form of P of x upon Q of x, where P of x and Q of x are the polynomials of x in the domain, and Q of x does not equal to 0. Okay, so what is a rational function? The rational function is in the form of P upon Q of x, where P of x and Q of x are the polynomials of x in the domain, and Q of x does not equal to 0. Okay, so let's take one example for the graph. F of x is equal to 1 upon x. Yes, this is a rational function. This is also a polynomial function, constant function. Okay, so for the graph, we have to draw xy plane. So this is xy plane, and we have to draw the points. या कह सकते हैं कि we have to draw the graph of 1 upon x, and we have a function which is the reciprocal function. कह सकते हैं 1 upon x है. So if x is decreases, या कह सकते हो सबसे पहले हम बात कर लें increases, then the value of f of x is decreases. Okay, what? When the value of x is increases, the value of y is decreases. Okay, and the value of x is decreases, कम होती जाएगी, and the value of f of x is increases. Okay, और ये कह सकते हैं जैसे जैसे आपकी decrease होगी, ये आपकी क्या पहुंचेगी, आप बहुत ही infinity कह सकते हैं value. Okay, and one important thing is कि at x equal to 0, f of x will be not defined, या infinity जिसको हम कह सकते हैं. So x equal to 0 पे आप देखेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी. x equal to 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x आपकी क्या होगी, not defined. Okay, so let's draw the graph. So if value of x is increases, the value of f of x is decreases. मतलब अगर हम यहाँ से बढ़ते हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एंड when the value of x is decreases, the value of x is increases. So you will get this kind of graph. Okay, ये था आपका पॉजिटिव वैल्यू की, ये था, और इसी तरह जब आपकी वैल्यू नेगेटिव है, x is negative, and when x is decreases, value of f of x
is increases मतलब वैल्यू ऑफ x is increases when the value of x is decreases. तो ये आपको ग्राफ आएगा will be like this. ठीक है, इसको और यहाँ से ले आते हैं. दिस इज द रफ ग्राफ. ये टच नहीं होगा इसमें, याद रखिएगा. ये आपका इंफिनिटी भी जाता है. ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ upon x. And we can observe clearly, you can see the domain of this function is all real values except 0. Okay, the domain of this function is all real values except 0, and range of x, range of f. Range means value of y. You know, all real values ये कह सकते हैं माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, बट एक्सेप्ट 0. यहाँ पे भी 0 को ये नहीं मिलेगा. So all real values except 0. Domain and range both are same for this function. This is the example for rational function. Next function is modulus function. Modulus function is defined by f of x is equal to mod of x. F is that r to r. Okay, so modulus function is f of x is equal to mod of x, which is also known as absolute function. You know, मॉडल होने का मतलब है कि किसी भी रियल नंबर के लिए आपकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे. हाँ, 0 आपका उसमें आ जाएगा. ओके, सो ओके, एंड वी कैन डिफाइन बाय दिस वे mod of x when x is less than 0, the value of mod of x is minus x. Don't be confused. If you are thinking about this is negative, mod of x, value of mod of x is negative. This is not negative. Okay, because x is negative. If x is negative, then minus x will be positive. Okay, and in the case of when x is greater than or equal to 0, mod of x is always x. Okay, so let's draw the graph of this function. Okay, so if we substitute x is equal to 0, you will get 0, and if you will take positive value of x like all real positive values, you will get positive. Like for example, if you take x equal to 1, then mod of 1 is also 1. If you take x equal to 2, you will get 2 mod of 2, because mod of 2 is equal to 2. For 3, 3. For 4, 4. And in the case of minus real number, negative real numbers, we will get always positive. Like if you take minus 1, you will get positive 1. If you take minus 2, you will get positive 2. If you take minus 3, you will get positive 3. ठीक है, ये आपका एक रफ स्केच है. सो दैट्स व्हाई ये आपका ऐसा आ रहा है. अदरवाइज यू विल गेट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन लाइक दिस. ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 2 दिस इज फॉर 3. ये आपका जो है थोड़ा सा रफ स्केच बना है. दैट्स व्हाई ये ऐसा आ रहा है. ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, mod of x, y is equal to mod of x. So clearly we can see the domain of this function is all real values. Domain is all real values, and range आप देख सकते हैं
कि आपका 0 से लेकर इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी। सो या तो आप कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड यू कैन से 0 is included up to infinity. So ये दोनों ways हैं to express range of modulus function. All positive real numbers, or you can say कि 0 to infinity, from 0 to. Okay, so this is the graph of modulus function. इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा. Modulus mod of x is defined by when x is less than 0 negative. So the value of mod of x will be minus x because this is a positive. X अगर negative तो उसको positive कैसे बनाओ? Minus का sign लगा के. So you get positive value. Okay? And mod of x, value of mod of x when x is greater than or equal to 0, x. 0 पे भी आपका mod of 0 is 0 and all positive value के लिए भी आपका वो वही देगा. So this function is also known as absolute function. So आपके पास हमेशा value जो होगी वो positive. Okay? So next function, let's talk about next function. Next function is signum function. Signum function as such that, suppose a function defined by signum function, a function defined by -1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0, and 1 when x is greater than 0. Okay? So, signum function is defined by f of x when x is less than 0, the value of the function -1, when x equal to 0, 0, and for positive value is 1. Okay? ये आपका इस तरीके से डिफाइन किया जाता है. इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे इस तरीके से x upon mod of x when x does not equal 0 and in the case of x equal to 0 that is 0. यही से इसी से आपको ये दो वैल्यूज मिलेंगे because x equal to 0 function is 0, ठीक है, but if x does not equal to 0 it means या तो वो निगेटिव वैल्यू है या तो फिर पॉजिटिव वैल्यू. उन केसेस में आप देखते हैं when we take negative x when x is negative, so यहाँ पे आपका x रखेंगे but mod of negative value is always positive, so minus x रखने पे आपका x cancel होगा, you will get -1, and in the case of when x is greater than 0, so x के place पे x and mod of x is also x in the case of positive real numbers, so x cancel हो गया, आपके पास 1 मिलेगा. So these are two forms कह सकते हैं कि मॉडुलर सिग्नम फंक्शन को आप या इस वे में आप एक्सप्लेन करें या फिर ये भी इसका एक फॉर्म. तो ये आपके लिए बेटर है इसको समझने के लिए. ये ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म हो गया. ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन. Okay, so when we take 0, x equal to 0, the value of function is 0. Okay, and we take negative value, negative real numbers अगर हम लेंगे तो उससे always क्या देगा वो -1 रहेगा, मतलब constantly वो -1 रहेगा. So negative आपके real values लेने के लिए मतलब यहाँ से जैसे ही आप शुरू होते हैं तो आपको कहाँ की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे negative. तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा -1 और यहाँ पे कर देते हैं आप +1. ओके, रूल लिख देते हैं, तो क्या लग रहा है आपका 1. ये इसलिए बबल इसलिए क्योंकि 0 पे 0 है, लेकिन जैसे आप उससे निगेटिव रियल वैल्यूज में आते हैं लेस देन 0 निगेटिव वैल्यूज, वैसे ही आपका आना शुरू हो जाता है क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन -1. सभी रियल नंबर्स के लिए यहाँ पे फिर हो जाता है क्या -1. इन सेम केस व्हेन वी टेक पॉजिटिव रियल नंबर आफ्टर 0, ठीक है, तो ये आपका 0 पे 0 है, 1 पे 1 नहीं है, बट जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद से यहाँ से शुरू हो जाता है 1. फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1 एंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज
the value of the function is minus, and at 0, the value of 0, the function is 0. So this is the graph of signal function. Okay. Next function is very important function, which is greatest integer function. Okay. So f such that r to r defined by f of x is equal to square bracket x, or we express like this one. So that's why this function is also called floor function. Okay. अभी किस तरीके से इसको वैल्यू आप निकालेंगे, इसको आपको समझना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके लिए x की वो वैल्यू होती है जो उस x से आपकी हमेशा क्या रहेंगी, ग्रेटेस्ट बट लेस देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर बट लेस देन और इज इक्वल टू x. ओके, फॉर एग्जांपल we take 2.3. ओके, we take 2.3. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर हम बात करें, अगर हम नंबर लाइन बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसमें नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको. 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. Okay, so you know in a number line, on number line values are increasing. ठीक है, आपकी वैल्यूज जो है वो स्मॉलर से ग्रेटेस्ट वैल्यू की जब बढ़ती है, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू. ठीक है, तो जब भी आप इसकी बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फॉर 2.3, तो आप हमेशा इस तरफ से जाएं. आपकी पोजीशन कहाँ है, 2.3 मींस दिस इज द पोजीशन, योर पोजीशन इज हियर. आप यहाँ से आगे बढ़े हैं, ठीक है, आपको नीचे ऑन हुआ है यहाँ से, और आप कहाँ पहुँच गए हैं, 2.3. सो what do you think, which greatest integer you passed? 2. आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप देखेंगे आप 3 आप नहीं पहुंच पाए, बट आपने 2 कंप्लीट कर दिया, 2 के आगे आप पहुंच गए, 2 आपका आ रहा है. सो द वैल्यू इज 2. वैल्यू ऑफ 2 इज ऑल्सो 2. यस, क्योंकि आप 2 तक पहुंच गए हैं, 2 है या 2 से ज्यादा, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू क्या होगी, 2. 2.9 ऑल्सो, और इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यू गेट 2, क्योंकि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा पास किया है, 2. ठीक है. एंड अगर हम बात करें इसमें -1.5, because we are talking about all the numbers, so ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो फंक्शन के लिए अपने पास अगर है -1.5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, आप कहाँ पे कौन सी पोजीशन है, -1.5 इज हियर. ठीक है, बिटवीन -2 एंड -1.5. तो आपने कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी पास किया, या कौन सा आपने क्रॉस किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा क्रॉस किया है, -2. क्योंकि आपका जो मूव होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे. आपको देखेंगे कि -1.5 आप पहुंच रहे हैं, सो आपने कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्रॉस किया, -2. सो द वैल्यू इज -2 फॉर -1.5. सिमिलरली -2.9, आपको नंबर लाइन से बहुत अच्छे समझ में आएगा. -2.9, where is -2.9? Here. -2.9 आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा. ठीक है, वैल्यू आप यहाँ रखें. देखिए जब बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर उस वैल्यू की, तो आपके पास कौन सा हुआ है, -3 आपने क्रॉस किया है, सो वैल्यू इज -3. ओके, सो
सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स आप रखते हैं और जो भी आपकी वैल्यू आती है वो आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर होती है, बट यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसके इक्वल या उससे कम हो सकती है, ओके, लेकिन उसके आगे वाला इंटीजर हम नहीं ले सकते, ठीक है। अगर ये कोई इंटीजर है ऑलरेडी आपका ये इंटीजर सपोज -3 है, यस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी -3, क्योंकि आप इंटीजर पे। लेकिन अगर आप -3 तक नहीं पहुंचेंगे, -2.5 है, ठीक है, वेयर इज इट, -2.5 आपका यहाँ पे, ओके। तो आप -2 नहीं पहुंचे, अब यहां से देखेंगे इसके लिए क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, -3, इसमें से अच्छे समझ में आएगा क्योंकि आप -2, वेयर इज इट, -2.5 है। तो यहाँ से जब आप मूव करेंगे तो आपको समझ में आया कि -3 आपके पास क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर था, which is less than or is equal to -2.5 होना चाहिए। तो ये आपका उससे कम है, उसके आगे आप नहीं जाएंगे, -2 उसके आगे वाला इंटीजर होगा, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस concept, greatest integer function. Let's draw the graph of it. इसका ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लेना अच्छे से आप। दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनने भी लगेगा, ठीक है। कुछ लोगों को ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होती है। Okay, so let's draw the graph. So what do you think? मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के लिए बताया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका लिए अगर कोई भी वैल्यू आपके रियल नंबर x है तो ग्रेटेस्ट आपकी जो फंक्शन की वैल्यू होगी, ओके, वो क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x होगी। If we talk about 0, if we talk about 0, you will get 0, yes, ठीक है। लेकिन जब तक आप 1 तक नहीं पहुंचेंगे, यू नो, जितनी भी वैल्यू आपकी लाइक 0.1, 0.2, 0.5, कुछ भी अगर वैल्यू है, 0.9 भी है, बट ये आपका नेक्स्ट इंटीजर आप नहीं पहुंचे, 1 नहीं पहुंचे, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 0। मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये आपका एक्चुअली y होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। तो y में ये टर्म आपका 0 ही रहेगा, मतलब 0 पे ही चलता रहेगा जब तक हम x पर 1 पे नहीं है। और जैसे ही आपने x पर 1 रखा, ओके, ये उसके पहले तक गए, 1 के पहले तक, ठीक है, आपका 0 ही रहेगा। जैसे ही 1 पे आप आएंगे, आपकी जो वैल्यू होगी फंक्शन की क्या होगी, 1, राइट। अब आप तब तक की वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपकी 1 ही रहेगी जब तक आप 2 तक नहीं पहुंचेंगे। लाइक 1.1 पे भी आपका 1 ही रहना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.2, 1.3, 1.9, ओके। बट जैसे ही आप वहाँ पे 2 रखते हैं फंक्शन में, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यू नो, 2, तो ये जंप करके आपका यहाँ पर जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये आपका 2.1, 2.3 जितने भी आप रखते आएंगे सबकी वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी जब तक आप 3 पे नहीं आ जाते। जैसे ही 3 पे आप आएंगे वैसे वैल्यू फंक्शन की क्या हो जाएगी, 3, ओके। ये ऐसे रहता है, यहाँ पे भी ऐसे रहेगा आपका, ठीक है। ये वैल्यू भी आपकी ऐसे ही जाएगी, जब तक आप -1 तक नहीं पहुंचेंगे आपकी वैल्यू क्या रहेगी, इसमें -1, ठीक है। देन इसमें भी आपके पास ऐसी ही वैल्यू मिलेगी, -2 पे -2, लेकिन जब तक आप इसमें नहीं पहुंचेंगे आपकी वैल्यू क्या रहेगी, -2,
ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए तो -3 रहेगी। ओके, फिर सो आप देख सकते हैं लाइक अ स्टेप्स, लैडर होता है, आप स्टेप करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज आल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन। इसे आप स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन। ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसी में आते हैं हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, काफी सिमिलर है इससे। वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दिस इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो आपका उसमें दिया नहीं है इसके बट आई थिंक यू शुड नो। सो अ फंक्शन डिफाइंड बाय स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन denoted by this symbol. ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका जो था वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट और या फिर ये सिंबल। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन ये भी कह सकते हैं, जब तक हम उस तक नहीं पहुंचे आपकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, उस इंटीजर के यू नो जो भी अपने पास x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो उससे लेस या फिर उससे के इक्वल, उससे दैट्स व्हाई ये आपका फ्लोर फंक्शन भी कहलाता है। और ये आपका जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो भी आपकी इंटीजर वैल्यू होगी यू नो, ये अगर अपने पास है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपके पास स्मॉलेस्ट integer, smallest integer greater than or equal। कुछ बात समझ में? यहां पे अगर आपके पास रखा हुआ है सपोज 2.5, तो आपके पास स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए। इसको नंबर लाइन से भी देख लीजिए फिर से। Okay, now that is okay. 2.5. Where is 2.5? Here. 2.5. तो आप देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू x में x से कंपेयर करते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। सो 2.5 में आप देखेंगे कि आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर अब आपको देखना है, स्मॉलेस्ट कहाँ पे वो आपको बताएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू x, इसके इससे बड़ा या इसके बराबर। तो इसके बराबर तो इंटीजर, दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो इससे बड़ा आपके पास जो इंटीजर होगा, सॉरी स्मॉलेस्ट इंटीजर, वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, इससे बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए आपका क्या, स्मॉलेस्ट। आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते, स्मॉलेस्ट होना चाहिए इंटीजर, बट इससे क्या हो 2.5 के इक्वल या फिर इससे बड़ा। दिस इज नॉट एन इंटीजर, सो वी कांट टेक 2.5। तो इससे बड़ा जो स्मॉलेस्ट आप कह सकते हैं, जो इससे लगा हुआ होगा, दिस इज 3। ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है। वहां पे अपने पास क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या था आपका, इसी में लिया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, इसको फिर से इसको समझ लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको चाहिए है which is less than or equal to x, उससे छोटा। अगर हम 2.5 इसकी बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको बड़े से बड़ा इंटीजर चाहिए क्योंकि इससे लेस या इसके इक्वल हो। सो दिस इज नॉट एन इंटीजर, सो वी कैन टेक 2.5। तो इसके पहले जो होगा आपके पास 2.5 पे, ये आपका आ जाएगा 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ये वैल्यू आपकी 2 होगी। बट इन द केस ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन
स्मॉलेस्ट इंटीजर, यहाँ कहीं आप चाहो तो लिख लो मोर देन या ग्रेटर देन भी ठीक था, जहाँ पे लेस अपन ने यूज किया है लेस देन, तो यहाँ पे मैंने यूज कर दिया है मोर देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए, बहुत दूर नहीं जाना है, इससे लगा हुआ जो कि इसके इक्वल या फिर इससे क्या बड़ा ज्यादा। 2.5 इज नॉट एन इंटीजर, तो इसके आगे इंटीजर क्या हुआ, इससे बड़ा वाला 3 हो गया। सो रिजल्ट इज 3। ठीक है, वी टॉक अबाउट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर, चलो 1 के लिए अगर देखा, सो फॉर 1 उसके या तो इंटीजर आपका स्मॉलेस्ट हो जाए उसके इससे ज्यादा या फिर उसके इक्वल, तो दिस इज 1 इज एन इंटीजर, सो दैट्स व्हाई उसके इक्वल भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। ठीक है, इफ यू टेक 1.9, दिस इज सिंबल फॉर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए बट वो इसके इक्वल या इससे ज्यादा में आएगा, तो ये आप हो जाएगा। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना तो आपको समझ में आएगा। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर का मिलता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो f of x, सो दिस सिंबल शोज, जैसे अपने पास इसके लिए अपन ने यूज किया था फ्लोर फंक्शन, तो ये आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन इज आल्सो नोन एज सीलिंग फंक्शन। ये आपका सीलिंग फंक्शन भी किया जाता है, और स्टेप फंक्शन आल्सो, बिकॉज इसका जो ग्राफ होगा वो आपका क्या होगा, स्टेप लाइक स्टेप्स होगा। बट हाउ विल यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट, लेट्स सी। Okay, so 0 पे 0, बट जैसे ही आप 0 के आगे जाते हैं लाइक 0.1, 0.2, 0.3, तो उसकी वैल्यू क्या आना शुरू हो जाएगी, आपकी 1, राइट। इसके बीच में अगर कोई वैल्यू है, सो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा क्या काम करेंगे, उसके आगे वाला इंटीजर 1 है तो 1 है, बट उसके आगे वाला, ठीक है, और उससे कम है तो यहाँ। तो जैसे आप इसके आगे बढ़ेंगे आपका वैल्यू जो आना शुरू हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी ऐसा, ठीक है। तो तब तक चलेगी जब तक आप 1 पे नहीं आ जाते। जैसे ही आप 1 पे आएंगे तो इस पे 1, एंड देन जैसे ही 1 के आगे आप करना 1.1, 1.2, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में उसके आगे वाली वैल्यू, सो ये आपका आना शुरू हो जाता है 2, ठीक है। भाई तब तक चलता है जब तक आप कहाँ पे पहुँचते हैं, 2 पे 2, तो जैसे 2.1, 2.3 अप टू 2.9 जाएंगे, आपकी वैल्यू क्या आना शुरू हो जाएगी 3, लाइक दिस। एक बार बनाएंगे तो उसके बाद आपको बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ऐसे चलेगा, और जैसे माइनस में पहुंचेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी -, ओके। और जब तक आप इसके बीच में रहेंगे आपकी वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे -1 ही रहेगी, और जैसे -2 पहुंचेंगे सेम -2। इस तरीके से आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। ये उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जस्ट उल्टा है। See, again we got like a step function. So this is also known as step function or ceiling function. Okay. And next function is fractional part function. Fractional part function is defined by
या represented by curly brackets, ये आपका है, ठीक है। This is also known as decimal function. डेसिमल फंक्शन यही है कि कोई भी अपने पास यहाँ पे वैल्यू होगी उसका डेसिमल पार्ट लेना है, ओके, फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, ओके। इसे हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं या डिफाइन करते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की जो वैल्यू होगी, जिसे हम इस कर्ली ब्रैकेट में x रख के रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेट्स चेक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या 1.75, अगर आप इसको भी अप्लाई करेंगे तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0.75। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फ्रैक्शन पार्ट जो है वो आपको क्या है 0.75। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको मिलेगा 1.75। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू रखी तो ये यहाँ पे देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या आएगा आपका, यहाँ पे 1 आएगा, एंड देन यू विल गेट 1.75 माइनस 1 0.7। सपोज यू टेक 2, यस ऑब्वियस आपको 2 ही मिलेगा। कैसे, इस डेफिनेशन में क्या रखेंगे, देन 2 माइनस सॉरी इसके लिए आपको क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा, 2 माइनस 2 gives 0। इन वैल्यूज पे 0 इसलिए क्योंकि इसमें फ्रैक्शन पार्ट जो है वो आपका क्या है 2 पे 2 नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने आपको बताया। बट अगर हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करें और यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास सपोज 3, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0, राइट, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0, सो दैट्स व्हाई रिजल्ट विल बी 0। ये आपने देखा, ठीक है। फॉर नेगेटिव वैल्यूज सपोज वी आर टेकिंग माइनस 1.75, ये डेफिनेशन आप अप्लाई कर लें बेटर रहेगा, इसमें आपको भी कंफ्यूज नहीं होगी। सो माइनस 1.75 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस, अच्छा यहाँ पे मैंने लिख दिया था 1.75 और ये यहाँ पे लिखा, एक्चुअली यहाँ पे होगा 1.75। इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा 1, एंड हियर आल्सो 1.75, सो माइनस 1.75 एंड माइनस, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आपके पास है माइनस 1.75, आपके पास क्या आता है माइनस, सो माइनस 1.75 प्लस 2 will give 0.25। आप देखेंगे 2 में से आप इसको लेस कर देंगे। सिमिलरली वी टॉक अबाउट माइनस 3.2, यहाँ पे आप बिल्कुल भी ऐसा मत रखना फ्रैक्शनल पार्ट आपका जो है वो 0.2, नो, आपका ऑलवेज जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अप्लाई द डेफिनेशन इज हियर, इसको आप याद रखना है। सो माइनस 3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है माइनस 3.2, सो यू विल गेट माइनस 3.2 एंड माइनस greatest integer value for minus 3.2 minus 4, so you will get plus 4 then minus 3.2, you will get, इसको अगर ऐसा कर लेते हैं then you will get 0.8, ठीक है। तो ये आपका है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ओके। सर ग्राफ देख लीजिए कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस ग्राफ की, तो किसी भी इंटीजर पे
यू नो हमने चेक किया था, आपको जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो क्या मिलती है 0। तो ये आपका 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, -1 पे भी 0 मिलेगा, इस पे भी 0, इस पे भी 0, सब पे 0। लेकिन जैसे ही आप इसके आगे जाएंगे, ठीक है, इसके आगे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको मिलेगा। पॉइंट। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो किसके बीच में होगा, 0 से लेकर बट 1 से लेस में होगा। ठीक है, अब कितना भी इसमें वैल्यू आगे बढ़ाएंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो आएगा वो ऐसा आएगा, एंड 1 इज नॉट इंक्लूड, कभी भी ये आपका, क्योंकि इस केस में 2 भी क्या हो जाएगा 0। ओके, इसके लिए ऐसा इसमें ऐसे, यहाँ पे ऐसे, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू के लिए, लाइक अभी अपने डाली की वैल्यूज लाइक 1.3 की बात की, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास 0.3। ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये डेसिमल पार्ट, सॉरी डेसिमल पार्ट कहना चाहिए, वो शो करेगा, वही आगे तक बढ़ेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये आपका वाई चल रहा है, ठीक है, आप एक्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको उसको क्या मिलेगी, वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 0 से लेकर 1 के बीच में बढ़ने। जैसे आप बढ़ेंगे तो वैल्यू इतनी बढ़ेगी, बट फाइनली कहाँ तक 1 के पहले तक। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, सो क्लियरली वी कैन सी डोमेन इज, डोमेन आपके जितने भी हैं सब रियल नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि आपकी वैल्यू सब की सब पूरा कहीं पे नॉट डिफाइन नहीं। एंड रेंज जो है आपकी, रेंज ऑफ एफ दिस फंक्शन इज फ्रॉम 0 बट लेस देन 1। ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आपका 0 से लेकर बट 1 तक नहीं जाएगा, सो that's why this is also known as decimal function. ओके, सो ये कुछ फंक्शंस थे जिनको मैंने एक्सप्लेन किया, बताया, आप एक बार अच्छे से उसको समझिएगा, देखिएगा, एंड ग्राफ उनकी मैंने एक्सप्लेन की, कोशिश की समझाने की, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। तो these are very important functions, you should know, you are 11th student, तो you should know these functions, आगे 12th में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ओके।